हेलो व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ कोलकाता के केमेक स्ट्रीट में। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नाइट क्लब कम लाउंज बार है। उसका नाम है व्हाट्स इन द नेम। तो ये बहुत ही फेमस नाइट क्लब है कम लाउंज बार, और संडे को यहाँ पे बफे होता है विच इज़ सर्व्ड ऑन द टेबल। तो वही मैं ट्राई करने आया हूँ। चलो चेक करते हैं। थैंक यू। Chef has given me amuse-bouche. Amuse-bouche is a French word which means the chef gives the patron something before starting the meal. So in this I have got yogurt and mango paste on it, as well as this is fruit caviar. It's pure vegetarian. And see the way it's displayed. Wow. So I have Mr. Akash with me, the head chef. Hi. So the first course that we give over here to everyone, that whoever comes over here. So this is an amuse-bouche, and it has a spear of yogurt, mishti doi, and fruit juice caviars. On top of it, we have a mango sauce, and then we provide home-brewed kombucha, which is we brew it over here. Is it what? Home brewed? Kombucha. Kombucha. Okay. Yes. So kombucha is like a Japanese fermented tea drink. Okay. And we brew it over here in our kitchen. And this one is specifically cranberry flavored. So try it and let me know. Sure, I will. Thank you. So hi viewers, chef has given me the amuse-bouche. So it has got yogurt. On top of it there's a mango sauce as well as veg caviar. So इसमें सिर्फ you have to just hold it like this and slide it in. Wow. और इसका the shape is like a shell. And it has got the Japanese thing which is brewed. So I'll try that as well. Okay, interesting. It is a bit sour, a bit, not much. Lovely presentation and lovely taste.
seriously. And the way chef explained me was too good. So viewers, अभी मुझे मिला है ये सैलेड का नाम बहुत ही यूनिक है. इसका नाम है फालतू सैलेड, बिकॉज इसके अंदर फेटा चीज़ है और तो इन्होंने इसको इस तरह से मॉडिफाई कर दिया इस नाम को टू बी वेरी कैची. सो इट लुक्स यम. और इसके अंदर यू गेट आइसबर्ग लेट्यूस और साथ में कुकुम्बर्स हैं और दीज स्मॉल टोमेटोज, चेरी टोमेटोज. And the way they have served it, it looks like the trunk of a tree and a hole in it. So मतलब बहुत ही outstanding तरीका है इसको सर्व करने का. So really liked it. Its dressing is thyme, lemon juice and black pepper. So the starting is amazing और I think आगे भी और बहुत ही बढ़िया होगा. Now I have been served with the raw papaya salad. It looks awesome and the way presentation is like top notch. So I'm trying the raw papaya salad. Thai preparation, sweet, a bit of spice, and finely sliced papaya. So it has got red lettuce in it and sliced and peeled orange slices. बहुत ही refreshing है. The ingredients they have used are of a very high quality. I have tried 3 things now. तीनों अभी तक 10 out of 10 है. So ये थुप्पा आप सर्व कर दिया है. An amazing presentation again. So अभी मुझे सर्व हुआ है थुप्पा. अब मैं इसको टेस्ट करूँगा. बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट है. और इसका मोमो बहुत ही बढ़िया. मोमो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कुक्ड है और स्पाइसी है. जैसे मैंने बाइट किया मुझे आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो इतना सही स्पाइसी निकलेगा. आई थॉट इट टू बी सटल एंड आई एम सरप्राइज्ड. जो ब्रॉथ है वो सटल टेस्ट की है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है. बट जो मोमो है, डम्पलिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है और अच्छा बैलेंस हो रहा है इसमें. दिस मॉकटेल इज़ टॉलीवुड स्टार. क्वाइट इंटरेस्टिंग नेम. So now I'm trying the Tollywood Star. Very refreshing. So what's in the name में आके एक चीज़ तो पक्का है कि you get the best of everything. It won't disappoint you at all. So this is how they serve puchka or golgappa with veg caviar. Wow. इतना पेज 3 वाला पुचका मैंने पहली बार देखा है. See,
सीरियसली So these are three fruit-based caviars with different flavors. So Mr. Akash will explain us कि ये कैसे prepare होता है. So we use fruit juices, and the fruit juice is being presented like this, but we use agar agar as a jellifying agent. So agar agar is a substitute of gelatin which jellifies these fruit juices, and then we get this product out of it. Okay, so nice. Wow. So it's quite fascinating to see fruit-based caviar. Wow. So अब मैं इनका वो पुचका या आप बोल सकते हैं गोलगप्पा टेस्ट करने वाला हूँ. मतलब इतना हाई फाई 5 स्टार पुचका मतलब पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज इट्स बेसिकली स्ट्रीट फूड. सो और साथ में इसका वाटर टेस्ट करता हूँ मैं. वाटर इज़ ऑल्सो वेरी गुड. टैंगी है, स्पाइसी है, जैसा गोलगप्पे का पानी होना चाहिए. बहुत बढ़िया, टॉप क्लास. और इनफैक्ट द प्रेजेंटेशन इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग. ये देखिए आप, डबल थम्स अप फ्रॉम मी. ये जो कैवियर सर्व कर रहे हैं वो शेल्स में. सो दीज आर नेचुरल शेल्स. सोचो, अटेंशन टू डिटेल कि कैवियर सर्व चाहते तो एक नॉर्मल यूटेंसिल में भी सर्व कर सकते थे, या थोड़ा फैंसी वाइट पोर्सलिन में या ब्लैक में, बट दे डिसाइडेड टू यूज़ रियल शेल्स. ये आर्टिफिशियल नहीं है. जस्ट इमेजिन. Because why did they do it? Because caviar is something which belongs to the sea, the real caviar. तो उसको और ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए लाइक सल्यूट टू द क्रिएटिविटी, सीरियसली. और ऊपर से वेज है, सबसे बड़ी बात तो ये. So शेफ बताएंगे कि exactly what is this. So hi chef. So this is Saki Galotti. Saki Galotti, okay. And we have jalapeno raita as a spread. And Jalapeno raita is a spread. And then we have on top of this is corn and methi kulcha. Okay, so ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है that is actually corn and methi kulcha. So just see कि creativity का कोई limit नहीं होता. The plate is totally different for a different dish. Presentation style is totally different. It's food for the eyes. And chef, what about this? This is tandoori mustard broccoli, and then we have this mustard spread again, and this is the cheese sauce, cheddar cheese sauce. Okay. Wow. मतलब दिल कर रहा है कि इसको खाऊं ना, इसको ऐसे ही देखता रहूं. Seriously, it's so good looking. So I'm starting with this galotti kebab with these small naans on it. Like ये सबसे यूनिक नान है मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं. और प्रेजेंटेशन देखो, मतलब सच बता रहा हूँ, मन नहीं कर रहा है कि खाऊं और इसको ख़राब कर दूँ. ऐसी का ऐसी रहे, सीरियसली ऐसा दिल करता है. सो नाउ आई विल टेस्ट इट फाइनली. सो ये तो मतलब इट्स सो क्रीमी. ये जो गलौती कबाब है, एक सेकेंड मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा, ऐसे ही निकल आया. इसके इंग्रेडिएंट्स आर स्पिनच एंड मस्टर्ड. वाओ. सीरियसली लाइक मेरा आज दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ है. सीरियसली इट्स अ ब्यूटीफुल डे. जब आपको इतना अच्छा खाना मिल जाए खाने को, वो भी इन द ब्रंच,
तो दिन तो बढ़िया होना ही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। Akash is not a chef, he is a master chef. Seriously, he is a master chef. वाह। और नीचे हैलापिनो रायता, तो डेफिनेटली एक किक तो आएगा क्योंकि हैलापिनो है। वाह। अच्छा जी, वो सिरके वाले प्याज भी हैं, उसको थोड़ा सा तोड़ के, ये जो पिंक है दैट इज़ एक्चुअली वो होते हैं ना पंजाबी रेस्टोरेंट में मिलते हैं सिरके वाले प्याज, वो है ये। तो सीरियसली बताऊँ, इस टाइम जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ऐसा है कि मैं इस टाइम स्वर्ग में हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इतना अच्छा खाना है ना कि मतलब कहते हैं सारे सेंसेस एक्टिवेट हो गए, मेरे आईज़ एक्टिवेट हो गए, देख के खुश हो गया मैं। मेरे नाक एक्टिवेटेड है बिकॉज खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। मेरे टंग एक्टिवेटेड है बिकॉज स्वाद इतना अच्छा आ रहा है। और मेरी स्किन एक्टिवेटेड है, द इंटरनल स्किन, बिकॉज इसका जो टेक्सचर इतना अच्छा है। सो बेसिकली मेरा ब्रेन है ना इस टाइम पे लाइक सारे खुशी के सिग्नल एक साथ घुस गए मेरे ब्रेन के अंदर इस टाइम पे। लाइक आई एम सो हैप्पी राइट नाउ हैविंग दिस फूड। सो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ एग्जैक्टली। सीरियसली यार, लाइक टॉप का काम किया है, मतलब जिस तरह से किया है ना, मतलब अनबिलीवेबल है। मज़ा ही आ गया जी, मज़ा ही आ गया। सो अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ तंदूरी ब्रोकली, और ये भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, बहुत ही बढ़िया। स्पेशली आई लव द प्लेट्स दे यूज़। मतलब हर एक डिश के लिए एक अलग डेजिग्नेटेड प्लेट है, और पूरा ना एक्सपीरियंस इतना सही है ना, इट्स मोर लाइक अ जर्नी देन जस्ट हैविंग फूड। सो और ये ब्रोकली है, इसके ऊपर चीज़ है, एज अ सरप्राइज हल्का सा स्वीट है, हल्का मीन्स लाइक 5%। और जो मतलब जो ब्रोकली का नेचुरल टेस्ट है वो तो बहुत सही है ही, और स्टफिंग भी कर रखी है इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया। जो मैरिनेशन है, अच्छा इज इट अ कैश्यू बेस्ड मैरिनेशन? हाँ सही पकड़ा, कैश्यू बेस्ड मैरिनेशन है, और ऊपर से चेडर चीज़ है, और मतलब क्या बताऊँ, टॉप क्लास। काजू का जो एक हल्का सा वो रॉयल टेस्ट आ रहा है, प्लस दैट हल्का स्वीट, और ब्रोकली और चीज़, और वाओ। मैं दिल कर रहा मैं इस रेस्टोरेंट में बैठ ही जाऊँ परमानेंटली, कभी ना जाऊँ और खाता जाऊँ। इसको मैं 10 में से 11 दे सकता हूँ आराम से, ये और जो भी खाया दोनों आइटम्स को 10 में से 11। जब आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कभी किसी बुफे में जाते हैं तो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसका ग्राफ ऊपर जाता है, फिर कुछ नीचे होता है, फिर कुछ ऊपर होता है, ऐसे चलता रहता है। सो एट द एंड ऑफ द मील आप एक एवरेज निकाल लेते हो कि हाँ क्या मैं खुश हुआ या नहीं हुआ, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट्स लाइक अगर मैं 0 to 10 का ग्राफ लेके चलूँगा ना तो एक फ्लैट लाइन चल रही है 10 पे अभी तक। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 10 से थोड़ी सी भी नीचे आई हो। सो दिस इज़ टू गुड। मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल समझाने लग गया, बट दैट्स द वे आई फील राइट नाउ। सो टॉप क्लास है, सल्यूट टू द शेफ एंड द होल टीम विच प्रिपेयर्ड द मील लाइक दिस, जो कि आपको सिर्फ लाइक अच्छा टेस्ट ही नहीं देती, बट इट्स मोर लाइक अ जर्नी, जिसमें इंसान कहता है ना कि बस बह जाता है कि यार ये तो अलग ही है चीज़, वैसा वाला फील आ रहा है। So it's amazing, marvelous. This is Burmese Khawsway, another marvelous creation by chef and his team. This is the buckwheat noodles and the broth to have it with, and the condiments.
सो नाउ आई एम गोना ट्राई द बकवीट नूडल्स. सो पहले मैं जस्ट ऐसे ही ट्राई करता हूँ, विदाउट द ग्रेवी ऑफ कोर्स. टेस्ट इज़ वेरी गुड. मैं सोच में पड़ गया हूँ कि इसको अगर ग्रेवी के साथ खाऊंगा तो इसका कहीं टेस्ट तो नहीं सप्रेस हो जाएगा. पहले ग्रेवी अलग से टेस्ट करके देखता हूँ. राइट. तो आई थिंक ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा. आई थिंक इसके साथ खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो अब ये बकवीट नूडल्स विद द ग्रेवी. बकवीट वही होता है जिससे कि सोबा नूडल्स बनते हैं जो जापानीज होते हैं. आई थिंक एम आई राइट शेफ कि सोबा नूडल्स दिस बकवीट, या सो दिस बकवीट हैज़ मोर फाइबर कंटेंट देन नॉर्मल वीट. या ओके सो ये हेल्दी भी है बिकॉज इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वीट. सो इट्स अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव. जनरली खाउसवे में क्या होता है, आपको पूरा एक ब्रॉथ दे दिया जाता है, उसके अंदर नूडल पहले से ही रहते हैं, आपको सिर्फ कॉन्डिमेंट्स अलग से दे दिए जाते हैं. बट इन्होंने क्या किया, एक यूनिक तरीके से मुझे ये दिया है हाउसवे, जिसमें कि बकवीट नूडल्स यूज़ हुए हैं. ओके बेसिकली आप उसको सोबा नूडल्स भी कह सकते हैं, और ग्रेवी अलग से दी है सो दैट आई कैन यूज़ एज पर माई टेस्ट. सो ये ग्रेवी अपने आप में ही बहुत बढ़िया है. कोकोनट बेस्ड है. आई थिंक लेमन ग्रास भी है इसमें. लेमन ग्रास इज ऑल्सो देयर. यस आई एम राइट. सो ये बहुत ही बढ़िया है. और मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा ये साउथ ईस्ट एशिया का ट्रिप लग गया अभी बैठे बैठे, विदाउट टेकिंग एनी फ्लाइट. सो यही फीलिंग आती है जब अगर आप किसी साउथ एशियन कंट्री में जाते हो और खाते हो, वही आपको राइट अवे यहाँ ही मिल गई. So he is the master chef, Mr. Akash. So he was with me all the time when I was having my food, explaining me each and everything about the preparation and the ingredients. So we had a lot of chat and just loved the experience at this place. Thank you, Mr. Akash. My last main course for the day, as it is said, last but not the least, this is the Pad Thai noodles. Thailand's most famous noodles. Amazing creation again. Looks so beautiful. So ये है मेरा लास्ट मेन कोर्स आज का, और ये जर्नी बहुत ही बढ़िया रही है. एंड आई नो दिस गोना बी वेरी गुड अगेन. सो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ पैड थाई नूडल्स, और ये बहुत ही स्पाइसी दिख रहा है. इट्स फुल ऑफ फ्लेवर्स. स्पाइसी, टैंगी, स्वीट, सब एक साथ. और फ्राइड ऑनियंस है और फ्राइड गार्लिक है ऊपर से. आई विल कॉल इट माई वर्चुअल ट्रिप टू थाईलैंड, सीरियसली, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वही टेस्ट मिल रहा है यहाँ पे. सो अच्छा है, प्लेन का खर्चा बच गया मेरा. यहाँ बैठे बैठे मुझे ऑथेंटिक थाई मिल गया. और अब इसके बाद डेजर्ट ट्राई करूँगा. सो अभी तक एवरीथिंग हैज़ बीन 10 out of 10, और ये बहुत ही बढ़िया था. और आई विल मिस दिस होल थिंग जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया एट व्हाट्स इन द नेम. एंड मिस्टर आकाश ने जो प्रिपरेशन की है वो टॉप क्लास है. और सीरियसली आई विल मिस दिस मील, एंड आई विल रिमेंबर दिस मील फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. और बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट है, और जो इंग्रेडिएंट्स ये लोग यूज़ करते हैं और जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी डिशेस प्रिपेयर करनी है, वो बिल्कुल ही परफेक्टली एग्जीक्यूट की होती हैं. सो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया.
So this is the final course, the dessert, and see the beauty. So this is the final thing I'm getting in this meal, that is the dessert, and the name is cocoa nut, cocoa dash nut. So it resembles like a coconut, and matlab, the way it looks and the way it is presented is out of the world. So again वही feeling आ रही है कि इसको खा के ख़राब ना करूँ, बिकॉज ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि इसको मतलब आप ड्राइंग रूम में सजा सकते हो इसको, इतना अच्छा है ये, सीरियसली इतना सुंदर लग रहा है ये. सो फाइनली बट आई हैव टू टेस्ट इट, बिकॉज टेस्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा. बहुत ही क्रीमी है. So now chef is pouring some chocolate sauce on it. Okay. So this is hot chocolate on it. Wow. So coconut and chocolate together. Wow. Thanks chef. So अब तो और ही अच्छा लग रहा है after the chocolate sauce. जब भी आप कभी कोलकाता आएँ या आप ऑलरेडी कोलकाता में रहते हैं तो व्हाट्स इन द नेम ज़रूर आएँ. आई नो इट्स वेरी फेमस एज अ नाइट क्लब एंड अ लाउंज, बट संडे को आपको ब्रंच मिलता है और मतलब दिस एक्सपीरियंस इज़ इधर इक्वल और अबव अ 5-स्टार एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से. तो अगर आप कोलकाता आ रहे हैं या कोलकाता में हैं तो ज़रूर एक बार तो ट्राई करना बनता है. इट विल ब्लो योर माइंड. Thank you for watching this episode, and do like and subscribe and share this video with your friends. Signing off.